tetracycline is also protein synthesis inhibitor. And why it is called tetracycline? Look at the structure of tetracycline. It has 4 cycle or 4 rings in its structure, and that's why it is called tetra. Tetra means 4, and cycle, 4 cycle are rings, and derivative ene. So 4 साइकिल इसमें चूके हैं तो इट इज कॉल्ड टेट्रासाइक्लिन्स. ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि 4 जो हाइड्रोकार्बन रिंग्स हैं, and on each hydrocarbon ring there is attachment of either hydroxyl group or methyl group. And this tetracycline is actually a very old antibiotic drug, and it was first time synthesized in 1948 from a Streptomyces genus from the Actinobacteria. ठीक है, तो एक Streptomyces की genus है, that is Actinobacteria. ये भी tetracycline भी जो है वो उसी से synthesize की गई है. ठीक है, and this tetracycline is a crystalline amphoteric substance, and it is insoluble mostly, but in the hydrochloride preparation it is soluble in the acids and the other body fluids. And it is a very broad spectrum antibiotics, but it is a bacteriostatic. It is not a bactericidal. Okay? So remember that tetracycline is bacteriostatic, and it covers most of the aerobic and anaerobics, gram-positive and gram-negative organisms. And in addition to that, bacteria, it also covers against rickettsia, mycoplasma, chlamydia. Even if you remember, the doxycycline, which is one of the tetracycline, used for the treatment of travelers malaria as well. ठीक है, तो मलेरिया में भी ये against जो against Plasmodium falciparum, it is effective. And there is a high incidence of development of resistance against these drugs. Therefore, इनका use जो है वक्त के साथ अब सारी ही एंटीबायोटिक अगेंस्ट रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई है, but even then they are used and they are prescribed in the clinical sites. So tetracyclines and its congeners are tetracycline itself, chlorotetracycline, oxytetracycline, demichlorocyclines, methacycline, doxycycline, minocycline, and the new one is tigecycline, जो कि ग्लाइकोसाइक्लिन के डेरिवेटिव है, तो इसको आप टाइग्लिसाइक्लिन भी कहते हैं. और ये जो है स्ट्रक्चर में थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम द टेट्रासाइक्लिन, दैट इट हैज अ बल्की constituent in its structure, जिसकी वजह से जब आप रेजिस्टेंस इसकी डिस्कस करेंगे तो we will see that tigecycline is effective for the resistant strain, जो कि बाकी टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट डेवलप हो जाते हैं, और that is because of its structure. ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे later on. We can classify the tetracycline according to the generations and according to the duration of action. Okay? हम इसको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या हाफ लाइफ जो उसकी है, एंड सेकेंडली जो जनरेशन वाइज जैसे जैसे ड्रग जो है वो सिंथेसाइज हुई. ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन, द ओल्डर वन, it has a shorter half life, about 12 hours. ठीक है, sorry, about 2 to 8 hours. तो जो इसका इंटरवल है वो शॉर्टर है, डोजेज इंटरवल भी फिर शॉर्टर होगा. आफ्टर एवरी 6 आवर हमें ये जो है कैप्सूल देने पड़ेंगे या टैबलेट्स देनी पड़ती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन विद अ शॉर्ट हाफ लाइफ इंक्लूड्स chlorotetracycline, oxytetracycline, tetracycline. These are the 3 tetracyclines which have a very short half life, about 6 to 8 hours. Then one is intermediate, आप उसको intermediate कह सकते हैं. यहाँ पे उसको मैंने लेबल तो नहीं किया, बट चूंकि इसकी जो हाफ लाइफ है it is about 12 hours, and that is demichlorocycline, and that's why its dosage interval is a little larger as compared to the
previous three were. Then we come to the second generation tetracyclines, and the dosage interval is longer. यानी gradually जैसे जैसे नई जो tetracycline synthesize हुई, उनका dosage interval या half life जो थी वो it was larger, और उसमें फिर जो drugs थी वो single dosage के साथ या BD dosage के साथ भी वो उतना ही effect produce कर रही थी. तो जो it means they are better than the first generation. That include minocycline, methacycline, and doxycycline. And then the last and the latest one was the third generation. That include glycylcycline, and that glycylcycline are synthetic preparations, and they include in its structure glycylamido, and glycylamido is a huge substituents, जो constituents of the structure, जिसकी वजह से इसकी जो differences आते हैं from the resistance, that is because of its structure. ठीक है, so it includes only single drug, that is tigecycline, and its half life is 36 hours. तो सबसे longer duration जो है वो इसकी टाइगीसाइक्लिन की है, और इसका इंटरवल जो है वो बाकी टेट्रासाइक्लिन से जो डोजेज इंटरवल है वो लार्जर है. लेकिन अगर इसको हम अभी से मैं थोड़ा सा इसका बता देती हूँ कि जो टाइगीसाइक्लिन है, although it is effective against the resistant strain of the tetracycline, जो कि the microorganism which are not susceptible to the tetracycline or susceptible by the tigecycline, but it was observed in a trial study that this tigecycline increases the number of deaths. That's why they put it into the black box. इसको आप सिर्फ वही यूज कर सकते हैं where the need is more than the risk. ठीक है, जहाँ आपने advantages और disadvantages को compare करना होता है, so then you can prescribe this tigecycline. Regarding the spectrum of tetracycline, as I have said earlier, it is a broad spectrum. It covers all the aerobic, anaerobic, gram-negative and gram-positive bacteria like streptococcal pneumonia, H. influenza, that is Haemophilus influenza. इसके against doxycycline का बहुत ही अच्छा जो है response है. Then Pseudomonas, Pseudomyeli, Brucella, Haemophilus ducreyi, जो कि शैंक्रोइड्स प्रोड्यूस करती है, एक डिजीज होती है. विब्रियो कॉलरा जो कि कॉलरा प्रोड्यूस करता है. लेजुनेला न्यूमोफिला, वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ निमोनिया. फिर कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एंड यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका, एंड फ्रांसिसिला टोलिरिसिस, पेस्टुरेला मेल्टोसिडा. ठीक है, बाय knowing the spectrum you can now yourself can do the clinical uses. आप इससे खुद से ही कह सकते हैं कि इन बैक्टीरिया से क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं. then you can prescribe this tetracycline accordingly. ठीक है, तो हम इसको uses पे डिस्कस करेंगे. रिकेट्सिया, रिकेट्सिया की बहुत सारी स्पीशीज हैं which causes Rocky Mountain spotted fever, murine typhus, epidemic typhus, scrub typhus, rickettsial pox, Q fever, which is caused by Coxiella burnetii, और all these diseases are tick-borne. ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया ट्रांसमिट होता है that is by the bite of tick, जो कि स्पेशली उन एरियाज में होता है जो माउंटेन्स वगैरह में. Then miscellaneous microorganisms which are covered by tetracyclines are spirochetes, and spirochetes like Borrelia recurrentis, Borrelia burgdorferi, Tapenomma pallidum which causes syphilis, Tapenomma purpurina, and Mycobacterium marinum. ये भी जो है non tuberculous mycobacteria है, and it causes the diseases like inflammation of lymph nodes etc. तो उसके against भी tetracyclines are very effective antibiotics. Borrelia recurrentis causes the borreliosis, जो कि एक disease है which is also transmitted to the human by the inhalation of the animal dust. ठीक है, जहाँ पे जो लोग animals को deal कर रहे होते हैं वहाँ पे अगर dust को inhale करने से sometimes they get infected by these spirochetes, Borrelia, and they develop the fever and borreliosis. Other symptoms like enlarged lymph nodes, and there is a rashes,
जिसको एरिथेमा माइग्रेन्स के नाम से भी होता है, वो इस सब जो है caused by Borrelia also treated by tetracycline. Sometime यूज फॉर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. अब जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ये मलेरिया में भी, यानी कि जो डॉक्सीसाइक्लिन है, अगर आप मलेरिया का जब चैप्टर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो ट्रैवलर्स होते हैं या ट्रैवलिंग के लिए आप अगर मलेरिया को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो वहाँ डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है. ठीक है, तो ये सो दिस टेट्रासाइक्लिन आल्सो कवर द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. Minocycline is one of the tetracycline which have a very good tissue penetration, and it is present in the secretion. That's why it is used for the treatment of eradication of meningococcal carrier state. क्योंकि ये जो meningococci होते हैं, they resides in the pharynx and the throats, and this carrier state can then be eradicated by the use of minocycline. For that, we can give the single dose of minocycline 200 milligrams stat and then 1 for BD. So it will eradicate the carrier state of the meningococci. Similarly, जो demicocycline है, it is used off-label for the treatment of inappropriate secretion of antidiuretic hormone. So it means it acts as an antagonist of ADH, and sometimes when there is a inadequate secretions of this ADH, we can give this demicocycline to block the effect of ADH in the renal tubules. ठीक है, तो ये antagonist के तौर पे वहाँ पे act करेगी. The latest one, tigecycline. Many tetracycline resistant strains are susceptible to it because not affected by resistant determinant. अब जो resistance होती है against the tetracycline, उसमें सबसे important जो resistant determinant है या factor है, that is formation of efflux pump by the bacteria. And secondly, they synthesize a binding protein which attach to the 30th ribosome. तो इस तरह वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं. बट दिस टाइगीसाइक्लिन कैन एक्ट टू दिस रेजिस्टेंस स्ट्रेन बिकॉज ये जो रेजिस्टेंट डिटर्मिनेंट्स है ये इसके साथ नहीं है, क्योंकि इफ्लक्स पम्प अगेंस्ट टाइगीसाइक्लिन इज नॉट इफेक्टिव, जो कि वो बना भी लेते हैं बैक्टीरिया. एंड सिमिलरली जो प्रोटीन वो सिंथेटिक effective. The reason is that this tigecycline has a bulky constituents which will not let the bind this synthesized protein to the 30S. Okay? तो 30S पे बिल्कुल tigecycline ही attach होगी और resistant strains के against effect produce करेगी. Similarly, the effect of this tetracycline on intestinal flora. This is a very important feature, क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन्स है इनका बेसिकली कोई हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होता. इनके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्ट टॉक्सिक लेवल ऑफ द टेट्रासाइक्लिन. यानी कि अगर लेवल इंक्रीज है तो इट विल कॉजेज द डायरेक्ट टॉक्सिसिटी टू द टिश्यूज. एंड सेकेंडली दे चेंज द इंटेस्टाइनल फ्लोरा. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये जो हैं क्योंकि इनकम्प्लीटली अब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द जीआईटी, दैट्स व्हाई द हाई कंसंट्रेशन विल बी प्रेजेंट इन द बाउल एंड इट विल देन मार्कली चेंज द इंटेस्टाइनल फ्लोरा. जो तो ससेप्टिबल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होंगे दे विल बी किल्ड बाय द टेट्रासाइक्लिन, whereas non-susceptible coliform and other like Pseudomonas, Proteus, Candida and Clostridia, they will proliferate. ठीक है, तो ये जो है ये वहाँ पे proliferate करना शुरू हो जाएंगे. As a result, they will give yellow-green discoloration to the stool and also causes anal pruritus, vaginal and oral candidiasis. But जैसे कि एक Pseudomonas colitis हो सकता है with the other broad spectrum antibiotic, जैसे मैंने मैक्रोलाइट्स के साथ डिस्कस किया था, that is not common with the tetracycline. इसमें कोलाइटिस तो होगा बट इट कुड बी अ माइल्ड कोलाइटिस, नॉट द स्वेयर वन जो कि Pseudomonas कोलाइटिस बन जाता है लाइक विद द मैक्रोलाइट्स. ठीक है. Now what is the mechanism of action of this tetracycline? तो बेसिकली इसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं. One is how the drug enter first
how it enter into the microorganism and then how it act inside the cell. तो इसकी जो एंट्री है वो पार्शियली तो थ्रू पैसिव डिफ्यूजन हो जाती है एंड पार्शियली जो है वो एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होती है इनटू द सेल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों ही इन्वॉल्व होती है फॉर द एंट्री ऑफ द ड्रग into the microorganism, and then within the cell this tetracycline block bacterial translation by binding reversibly to 30S subunits. जो मैंने जैसे स्टार्ट में आपको बताया था कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो इट्स डिपेंडेंट ऑन द जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो राइबोसोम्स होता है 30S एंड 50S. देन मैसेंजर आरएनए होता है जिसके ऊपर कोडॉन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक 3 बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और वो स्पेशली जो है उनकी बेस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है विद एंटीकोडॉन और एंटीकोडॉन व्हिच आर अटैच्ड टू द कमिंग ट्रांसफर आरएनए. तो जो कमिंग ट्रांसफर आरएनए होता है इट ब्रिंग्स द न्यू अमीनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. तो ये 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और जो ट्रांसफर आरएनए होता है व्हिच इज ब्रिंगिंग द अमीनो एसिड इट इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर आरएनए. ठीक है, एंड इट बाइंड टू द 30S राइबोसोम जो कि इसकी ए साइड होती है. तो वहां पे चूंकि अब टेट्रासाइक्लिन अटैच हो जाएगी तो दैट चार्ज ट्रांसफर आरएनए विल not be able to attach with the 30S subunits. As a result, there will be no further elongation of the peptidal synthesis of the protein और वहाँ पे प्रोटीन की भी synthesis inhibit हो जाएगी. ठीक है, this prevent the addition of amino acid to the growing peptides. इसको थोड़ा सा इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं. You can understand कि this tetracycline which is showing in a yellow small elliptical shape attached to the 30S ribosome, and the new coming transfer RNA, that is charge transfer RNA, is unable to now attach with the codon of the messenger RNA. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे tetracycline attach हो गई. So this is the mechanism of action of tetracycline. How to prevent the protein synthesis in the bacteria. Now, what are the different mechanisms by which this microorganism develop resistance against tetracycline? Very simple. सबसे जो important है either there is a decrease antibiotic influx, और जो porins के through passively active diffusion होनी होती है, there is some change in the entry, or there may be development of efflux pump, active transport pump by the microorganism, and they can efflux out the tetracycline from the cell. Secondly, जो इसका एक mechanism है that is decreased access of tetracycline to the ribosome because of presence of ribosome protection protein. जो microorganism है वो एक protection protein बना लेती हैं जो जाके attach हो जाती हैं at the 30S ribosome. So instead of वहाँ पे tetracycline की bind होने की जो place है वो नहीं रहेगी. And third is enzymatic inactivation of tetracycline. If there is production of some enzyme by the tetracycline, by the microorganism, which inactivate the tetracycline. So इनमें जो पहले दो हैं, they are very important and most frequent way of development of resistance by the microorganism. Regarding pharmacokinetic, as I have discussed earlier, these tetracyclines are not so soluble and not so easily absorbed. लेकिन इसमें जो older वाले हैं second generation, it get absorbed about 95 to 100%. ठीक है, तो जो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा अगर compare करें कि percentage of oral dose absorbed from the empty stomach, chlorotetracycline, oxytetracycline, and dimiclocycline, they are absorbed only about जो chlorotetracycline है वो 30% और बाकी जो है वो 60 to 80% absorb होती हैं. Whereas the tetracycline, minocycline and the doxycycline, इनकी 95 to 100% जो है वो absorption हो जाती है. और that's why जहाँ पे आपने स्पेशली जो टिश्यू जो रिस्पांस लेना होता है उसके लिए हमको डॉक्सीसाइक्लिन या माइनोसाइक्लिन जो है वो उन्हें लेनी होती है. एक्सक्यूज मी बेटा, मुझे फोन अटेंड करनी है.
सॉरी, अच्छा, तो ये जो एब्जॉर्प्शन है इट वेरी विद द जनरेशन वाइज विद द डिफरेंट टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, and they are more absorbed when taken by empty stomach, and tigecycline do not absorb. अब यहाँ पे ये याद रखना है कि जो tigecycline है ये बिल्कुल absorb नहीं होती by oral route, so it is given by intravenous route 100 milligram stat dose and then followed by 50 milligram BD. ये थोड़ा सा अब फार्माकोकाइनेटिक में आपने जो स्ट्रेस देना है वो इसकी जो थोड़ी सी डिफरेंसेस है इन द एब्जॉर्प्शन एंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन मेटाबॉलिज्म। अब एब्जॉर्प्शन के लेवल पे जो है लाइक जो डाइवेलेंट्स मोनोआइंस हैं कैटाइंस हैं दे विल चिलेट विद द टेट्रासाइक्लिन। तो ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए लाइक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एंड बिस्मथ सबसैलिसाइड्स, इट विल चिलेट ऑल दीस कैटाइंस, ठीक है, इनके साथ ये चिलेटिंग एजेंट बना देते हैं। सो इट विल आल्सो reduce the absorption of these ions preparation like calcium, magnesium, iron, zinc, ठीक है, तो इसके साथ ये खुद भी absorb नहीं होगी और इनको भी साथ absorb नहीं होने देगी। Distribution, it is widely distributed in all the tissue secretions including urine and even in the prostatic secretions. It get accumulated in the reticuloendothelial cells of the liver, spleen, bone marrow and in bones, dentine and enamel of the unerupted teeth. तो ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की कि जो टेट्रासाइक्लिन है क्योंकि ये डाइवेलेंट आयंस को कैटायंस को चिलेट कर देती है, जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इट विल गेट अब्सॉर्ब इन द ऑल टिश्यूज एंड स्पेशली इन द बोन और जो डेंटिन एंड एनिमल ऑफ द अनइरप्टेड टीथ हैं वहाँ पे ये ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, वहाँ कैल्शियम के साथ ये जो है ये चिलेट कर देगी, वहाँ पे बाइंड कर देगी। एंड ये इसको अगर आप याद रखोगे तो आगे इसके एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहले यही आता है कि बोन डिफॉर्मिटीज और बोन एनिमल और टीथ जो अनॉमलीज है वो इसकी वजह से होती है। इट आल्सो क्रॉसेस द प्लेसेंटल बैरियर, सो लैक्टेटिंग मदर को भी अगर टेट्रासाइक्लिन दे रहे हैं तो वो इन्फेंट्स को भी उसी तरह चली जाएगी। एंड दे आर फाउंड इन द ब्रेस्ट मिल्क एज वेल, ठीक है, लेकिन इनकी जो CSF पेनिट्रेशन है इट इज नॉट सो गुड, ओनली 30% इज गेट absorbed in the get penetrate the CSF. The excretion ये है कि it is excreted through the kidney, but इनमें से जो माइनोसाइक्लिन है it significantly metabolized in the liver. Similarly, tigecycline is also metabolized in the liver, and then inactive products are excreted through the bile and partly through the urine. अब चूंकि आपको स्पेक्ट्रम सारा मालूम हो चुका है और इससे आपको थेरेप्यूटिक यूजेस जो हैं वो इतना मुश्किल नहीं है। इट कवर ऑल द रिकेट्सियल इन्फेक्शन एंड इट इज अ लाइफ सेविंग ड्रग इन द रिकेट्सियल इन्फेक्शन लाइक रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, recrudescent epidemic typhus, murine typhus, scrub typhus, rickettsial pox and flu fever. Similarly, mycoplasma infections जिसमें माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो है वो बहुत ही स्पेशली क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, उसमें भी इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। देन क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस है लाइक लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम caused by these spirochetes, and first line drug is doxycycline. Then for the treatment of pneumonia, bronchitis, sinusitis caused by chlamydial pneumonia, it is a drug of choice. Similarly, trachoma, but in the childhood it is contraindicated. वो reason अभी आपको मैंने जैसे थोड़ा बता दिया कि बोन में डिपॉजिट हो जाती है, so that's why azithromycin then is preferred over the tetracycline. And sometimes non-specific जो urethritis के patients होते हैं and usually due to chlamydial trachomatis उनको भी आप जो है tetracycline prescribe कर देते हैं। Then sexually transmitted diseases like uncomplicated gonococcal infections, but वहाँ पे भी थर्ड जनरेशन जो है वो आजकल सेफ्लोस्पोरिन्स की ज़्यादा प्रेफरेबली यूज करते हैं एज कम्पेयर टू टेट्रासाइक्लिन। फिर बेसिलरी इन्फेक्शन है लाइक ब्रूसिलोसिस, टुलेरीमिया, कॉलरा, फिर एक्नी में आपको पता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्नी, इट इज एक्चुअली इट इज अ स्मॉल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन जो होता है
प्रोपियानी बैक्टीरिया होता है, ठीक है। प्रोपियानी बैक्टीरिया विच रिजाइड इन द स्पेशियस फॉलिकल्स and it metabolize the lipids and sometimes get irritating the it cause production of irritating free fatty acids, ठीक है। तो एक्नी कैसे प्रोड्यूस होती है? वहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है जो कि रिजाइड कर रहा होता है इन द स्पेशियस फॉलिकल, दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरिया, और वो वहाँ पे लिपिड को मेटाबोलाइज करके इरिटेटिंग फ्री फैटी एसिड बना रहा होता है जिससे एक्नी प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। तो फॉर दैट माइनोसाइक्लिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। Now come to the adverse effects। इसके साथ जैसे मैंने स्टार्ट में भी बता दिया था कि कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इतने नहीं है इसके साथ, ना ही कोई एलर्जिक रिएक्शन है, बट जो इसके डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं वो जीआईटी पे एपिगैस्ट्रिक बर्निंग, डिस्ट्रेस, एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ठीक है। और सम टाइम रियली सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, अदरवाइज सिंपल कोलाइटिस ये करते हैं। अब यहाँ पे जो जो टाइगीसाइक्लिन है, टाइगीसाइक्लिन समटाइम कॉजेज स्वेयर वोमिटिंग, जिसकी वजह से उस ड्रग को ऑफ करना पड़ता है। सेकेंडली, अगर पेशेंट इसको टेट्रासाइक्लिन पर हो फॉर मोर देन 2 वीक्स तो फोटोसेंसिटिविटी भी उनमें डेवलप हो जाती है यूवी लाइट्स के अगेंस्ट, सनलाइट के अगेंस्ट, ठीक है। Hepatic toxicity, not all these drugs causes the hepatotoxicity, only which are metabolized in the liver, especially oxytetracycline and tetracycline, जो कि लिवर में मेटाबोलाइज नहीं होते वो लेस हेपेटोटॉक्सिक हैं, लेकिन जैसे टाइगीसाइक्लिन है वो चूंकि लिवर में मेटाबोलाइज हो रही है और माइनोसाइक्लिन भी लिवर में मेटाबोलाइज होती है, तो दे कैन समटाइम कॉजेस हेपेटिक टॉक्सिसिटी। रीनल टॉक्सिसिटी, नॉर्मली तो ये टेट्रासाइक्लिन जो है अगर आप एडिक्वेट हाइड्रेशन के साथ ले रहे हैं तो इसके साथ कम रिस्क होता है, बट समटाइम जो है अगर आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन ले लें तो उसमें जो है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाता है और उसको फैनकोनी सिंड्रोम भी कहा जाता है, ठीक है। तो सो नेवर एवर गिव आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन, फिर उसके साथ फैनकोनी सिंड्रोम हो जाता है जो कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस एंड रीनल टॉक्सिसिटी उसके साथ प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और स्पेशली फिर इसके साथ बाकी सिम्टम्स भी बहुत सारी जो हैं वो आ जाते हैं एसिडोसिस की। और ये फैनकोनी सिंड्रोम या इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, दे आर इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन। देन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन, जो कि रीजन आपको पता है कि जो टेट्रासाइक्लिन है ये जाके कैल्शियम आयन के साथ चिलेट हो जाती है, it get deposited in the enamels and the bone. As a result, it causes the disrupted discoloration of the teeth enamels and also causes the deformity and growing of the bone abnormalities in the children, ठीक है। तो बच्चों में फिर टेट्रासाइक्लिन आपको नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये बोन डिफॉर्मिटीज भी कर सकते हैं और ये दांतों का जो ब्राउन डिस्कलेशन और डिसफिगर इनको कर सकते हैं। Hypersensitivity reactions are very rare but can cause sometimes urticaria and sometimes drug eruptions or exfoliative dermatitis and burning eyes, ये इसके साथ हो सकते हैं, ठीक है। And biological effects जो अभी हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि they can change the intestinal flora, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे सुपर इन्फेक्शन हो जाएगा। जो ससेप्टिबल माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं है, अपॉर्चुनिस्टिक हैं, दे विल स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग, दे विल कॉजेस सुपर इन्फेक्शन, ठीक है, और समटाइम कॉज सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। अगर आप आईवी दे रहे हैं टेट्रासाइक्लिन तो इट कैन बी फॉलोड बाय थ्रोम्बोफिलिबाइटिस, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है ऑफ द वेन्स and long-term therapy may sometimes produce changes in the peripheral blood picture, and sometimes can cause intracranial pressure leading to the tense bulging frontale, especially in the infants, बच्चों में ये कर सकता है इसका। And minocycline क्योंकि हर secretion में चली जाती है, sometimes it may cause vestibular toxicity, dizziness, ataxia, nausea and vomiting। तो ये सिर्फ minocycline के साथ है, बाकी टेट्रासाइक्लिन कोई इस तरह का CNS इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करती, ठीक है। So now you understand very well why it is contraindicated in the pregnant ladies, why it should not be given to the children under 8 years, ठीक है। क्योंकि अगर आप देंगे तो फिर उसमें बोन डिफॉर्मिटी और टीथ डिफॉर्मिटीज जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। सिमिलरली जो कि जो आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन है, it should be discarded
उसको यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज इट कैन समटाइम प्रोड्यूसेस वेरी फैंकोनी सिंड्रोम जो कि रीनल टॉक्सिसिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। So here the status factor is finished. तो मेरे पास अभी 10 minutes हैं, तो I will share the क्लोरोफेनिकॉल slides with you, क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पार्शली, उसको भी हम थोड़ा सा एक देख लेते हैं, ठीक है। Excuse me, ma'am. जी Assalamualaikum. This is Dr. Aisha from AIFC Online. जी ma'am. Ma'am, we don't have any questions right now in the chat box. Regarding tetracycline? We don't have any questions. Any questions at all? Don't have any question? Yes, ma'am. चलिए आपको मैं थोड़ा सा क्लोरोफेनिकॉल से रिलेटेड बता देती हूँ। Are you hearing me? आपको मेरी आवाज? Yes, ma'am. We can hear you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can hear you, and we have time till 11:25. नहीं बेटे, अभी I have 10 minutes of my lecture. जी ma'am, please continue. Okay, thank you. जी। तो क्लोरोफेनिका, चलिए मैं आपको थोड़ा सा वर्बली ही बता देती हूँ बिकॉज आई हैव सम प्रॉब्लम की स्लाइड शेयर नहीं हो रही। तो इसमें बेटे जैसे कि मैकुलाइट्स के साथ हमने डिस्कस किया था कि ये क्लोरोफेनिकॉल का जो है ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और दूसरा ये है कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेम है लाइक मैकुलाइट, इट बाइंड विद द 50S राइबोसोम and it prevent the transpeptidation, ठीक है, जो and translocation. It will inhibit the translocation of the transfer RNA to the from A side to the P side, ठीक है। तो ये वहाँ पे उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो 50S राइबोसोम के साथ बाइंड करते हैं। लेकिन चूंकि ये इसके साथ बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, लाइक जो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है, इसके साथ एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, और इसको इसलिए अब ऑब्सोलीट ही किया गया है या कहीं ऐसी जगह यूज किया जाता है जहाँ पे इसको आप बेनिफिट वर्सेस रिस्क को ओवरवे अगर कर रहे हैं, ठीक है, अगर बेनिफिट्स ओवरवेट कर रहे हैं टू द रिस्क, तो देन वी हैव टू गिव द क्लोरोफेनिकॉल एंड इट इज वेरी गुड ड्रग अगेंस्ट द टाइफाइड एंड शैगेला इन्फेक्शन, ठीक है। बाकी इन्फेक्शन जितने भी हैं जो अभी हमने टेट्रासाइक्लिन के साथ डिस्कस किए और मैकुलाइट के साथ डिस्कस किए, जिसमें क्लेमाइडियल इन्फेक्शन और इसमें रिकेट्सियल इन्फेक्शन, माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, स्पेशली एच इन्फ्लुएंजा और सूडोमोनास, एंड आल्सो कवर द ग्राम पॉजिटिव, ये सारे इन इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, ठीक है। लेकिन जो इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय ग्लूकन एडिशन बाय द कंजुगेटिंग एंजाइम ऑफ द लिवर, so that's why sometime if it is given to the infants or the premature infants, वहाँ पे इनकी प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म नहीं होती, तो इट्स लेवल गेट हायर, ठीक है। तो जो प्लाज्मा में इसका लेवल है क्लोरोफेनिकॉल वो इंक्रीज कर जाता है एंड देन इट कॉजेज ग्रे बेबी सिंड्रोम। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको चाह रही थी कि आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ठीक है। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द हाई प्लाज्मा लेवल ऑफ क्लोरोफेनिकॉल, स्पेशली इन द न्यूबॉर्न और इन द इन्फेंट्स, or in sometime in the older patient as well if they have some liver problem, ठीक है। तो उसमें क्लोरोफेनिकॉल का लेवल जो है वो इंक्रीज कर देता है इन द प्लाज्मा एंड दैट कॉजेज severe diarrhea and even circulatory collapse, abdominal distension, and also it causes the cyanosis of the lips and the tips of the hands and the feet, and causes gray ashen कलरेशन, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ठीक है, जिसकी वजह से इसको ग्रे बेबी सिंड्रोम कहा जाता है कि इसकी जो स्किन है बेबी की वो ग्रेश एशियन ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ दिस क्लोरोफेनिकॉल, ठीक है। तो ये दो चीजें इसकी याद रखते हैं, ग्रे बेबी सिंड्रोम, और दूसरा इसके साथ जो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन हो सकता है 1 in 3000 रेशियो के हिसाब से, इट कैन कॉज द एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। बाकी एडवर्स इफेक्ट वही हैं जो बाकी मैकुलाइट्स के साथ हमने डिस्कस किया था। इसकी जो डिटेल है वो आप उसको पढ़ सकते हैं उसमें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बेटी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। Why does chloramphenicol cause cyanosis?
बेटे